बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम साहब आप स्टार्ट कर दें। Okay, sir. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear participants, we are pleased to welcome you all in the ICMA Pakistan's CPT Committee's another live webinar. I am Asim Hussain Khan. We hope everyone who has joined today is doing well. As you are aware that ICMA Pakistan ever since COVID-19 has affected the world and Pakistan has taken upon itself to keep the CPT process of the members on the move. This, in fact, is the 8th webinar of the series, and we are very excited that the number of participation in these webinars are increasing with each program. It is actually your participation and encouragement which is motivating us to keep these programs ongoing on regular basis. Coming back to today's webinar, today we have Mr. Shehzad Ahmed Malik, Honorary Secretary of ICMA Pakistan, and Mr. Adil Amin, CEO of Shehzad Adil and Company as speakers. Mr. Shehzad Malik will speak on brief amendments in tax laws, whereas Mr. Adil Amin will deliver a brief presentation on the recently approved construction ordinance. Mr. Shehzad Ahmed Malik, our today's first speaker, is Honorary Secretary of ICMA Pakistan. Currently being CEO of Shehzad Malik Management Consultants, he is also holding honorary position of board member of Rawalpindi Chamber of Commerce, in addition to being member in different companies. Mr. Malik represents ICMA Pakistan in the recently formed Members Development Committee of CAPA and CPT and Training Committee of SAFA. He is also Chairman, Joint Committee of CA Pakistan and ICMA Pakistan. He is also heading the Members Welfare and Social Coordination Committee of the Institute. Mr. Malik has over 23 years of professional experience. After the presentation of Mr. Shehzad Ahmed Malik, Mr. Adil Amin will share a brief presentation on construction ordinance. Before handing over the session to Mr. Shehzad Ahmed Malik, I would like to inform you all that a 10-minute break will be observed at 6:45 p.m. Q&A can be done by typing your questions through Q&A option given at the bottom of your screens. Since we have limited time, both speakers will try to accommodate as many questions as they can. In addition, we will upload the presentations and recording of the webinar on ICMA Pakistan website. Ladies and gentlemen, please welcome our today's first presenter, Mr. Shehzad Ahmed Malik. Thank you, Asim Saab. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to give you, okay. First of all, I would like to give you the presentation sequence. We will discuss brief about tax, important sections, amendments during last year's, general discussion, and question answer session naturally with the members. And this whole presentation I have prepared with respect to for the benefit of members, and especially newly members who have newly started their tax consultancy, because many of our newly qualified members asked me that this type of session should be organized. So let's start from the first section, and this can you can say this would be a refresher course for those who members are already doing consultancy from last many years and involved in tax practice and other consultancy. Some section we will go in a very brief manner and would like to discuss
mainly those sections which are amendments of the last 2-3 years and their impact. So first of all, my presentation starts from the first section is 114 of the Companies Ordinance 2001, return of income. Subject to this ordinance, persons are required to furnish a return of income. Company, every person other than a company whose income for the years exceeds the maximum amount that is not chargeable to tax, जो कि वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती रही, जो कि पहले 300,000 थी, फिर 400,000 and now it's 600,000 for individuals and 400,000 for AOP. And company के लिए उसके लिए आपके पास basic exemptions नहीं होती. And the third is any non-profit organization as defined in clause 36, और कोई non-profit organization है जो पहले ये exempt थी, इनको टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं था, और इसमें लॉ में जब चेंज आई उसके बाद अब अगर इन्होंने 100% टैक्स क्रेडिट लेना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100C, तो they have to file the return and meet the requirement given in the ordinance. Next is any welfare institution approved under clause 58 of the part 1 of the second schedule and same requirement as NPO. इनको भी पहले इन्होंने PCP से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन करा के अप्लाई करना होता है अंडर रूल्स 236 पे. They would be declared as NPO, और उस सूरत में ये exemption अप्लाई कर सकते हैं FBR के पास, और FBR इनको exemptions के लिए जरूरी है कि उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं रिटर्न फाइलिंग का और उसके साथ विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइलिंग का और बाकी जो रिक्वायरमेंट टैक्स डिडक्ट करके पे करने का, उसके बाद इनको वो exemption दे सकते हैं. और 100C के मुताबिक वो सेक्शन 100C के मुताबिक उनको 100% टैक्स क्रेडिट भी दिया जा सकता है. Charge to tax in respect of any two preceding tax years. वो companies या persons claims a loss carry forward under this ordinance, or any person who owns immovable property with a land area of 500 square yards. पहले ये 250 square yards था, इसको increase करके 500 square yards किया गया है. और इसी तरीके से जिनका flats हैं उनके लिए ओपन प्लॉट्स के लिए लैंड एरिया के लिए 500 स्क्वायर यार्ड्स, और कवर्ड एरिया लैंड के अगर फ्लैट्स हैं उनका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन ए रेटिंग एरिया. ऑन द मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी ऑफ 1000 cc has obtained national tax number, or any person who has obtained a national tax number must have to file the tax return. Is the holder of commercial or industrial connection electricity where the amount of annual bill exceeds 500,000. So these are the requirements कि जिसके लिए सेक्शन 114 के जरिए उसको रिटर्न फाइल करनी. उसके साथ साथ क्लॉज 9 में is a resident person registered with any chamber of commerce of industry or trade business association or any market committee or professional body including PEC, PMDC, Pakistan Medical Dental Council, Bar Council, ICMA पाकिस्तान, NCA पाकिस्तान. तो इस क्लॉज के तहत कोई एनी पर्सन मींस कि हमारे जो भी मेंबर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं ICMA या CA के साथ, दे ऑल आर बाउंड टू फाइल द टैक्स रिटर्न. नेक्स्ट इज द शेल इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म स्टेटमेंट जो वेब पे मौजूद हैं FBR के, उसके मुताबिक वो सारी डिटेल्स देंगे और उस वेब मीडिया के मुताबिक अपनी रिटर्न फाइल करेंगे. शेल बी साइंड बाय अ पर्सन, वो खुद भी साइन मींस के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होंगे, या अगर उसको रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ किया है 172 के तहत सेक्शन 172. शैल बी accompanied with wealth statement as required under section 116. और उसके साथ 116 सेक्शन कहता है कि अब जो भी रिटर्न फाइल होगी उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल होगी. ये क्लॉज चेंज हुई थी, पहले इसमें 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी फिर इसमें आया कि जी जिसकी इनकम एनुअली 5 लाख होगी उसके लिए जरूरी है वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें. ये मैं बात कर रहा हूँ 2003 के बाद जो चेंज आई 2000 फाइनेंस बिल 2014 में, तो उसमें 5 लाख की रिक्वायरमेंट आई. देन इट इंक्रीज टू 1 मिलियन इनकम इन अ ईयर, दे हैव टू फाइल वेल्थ स्टेटमेंट. एंड नाउ
इस साल में आपने देखा होगा कि अब उन्होंने एक कंबाइंड रिटर्न बना दिया है जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट उसके साथ ही फाइल की जाती है। तो ये एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि जी जो भी रिटर्न 114 में करेगा 116 में उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। For foreign income shall be accompanied with foreign income and asset statement required under section 116A। ये रिक्वायरमेंट जो है ये उसके लिए है कि जिसकी रेजिडेंट है और उसकी फॉरेन इनकम है, उस सूरत में उसने 116A की स्टेटमेंट फाइल करनी है। नॉन रेजिडेंट्स के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जैसे हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है कि उसने ATL में आना है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के लिए, आइदर फॉर द बैंकिंग चैनल, आइदर फॉर एनी दे हैव टू परचेज एनी एसेट, और उस टैक्स को कम करने के लिए, तो उसको फिर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और उसमें भी वो वेल्थ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है, रिटर्न फाइल की जा सकती है एंड इज द ऑप्शनल कि वो उस पर वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो अपनी वो ऐड करें। Any return of income filed electronically on the web or any magnetic media transmit electronically to the income tax department। तो ये 2009 के बाद ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो थी 2009 में हुई, जो कि कंपनीज के लिए थी। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपल्सरी कर दी गई फॉर द ऑल इंडिविजुअल्स एंड AOP एंड कंपनी कि वो इसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करें। कमिश्नर के पास पावर्स हैं, वो इन नोटिस पर्सन और या उसके रिप्रेजेंटेटिव एज के मे बी टू फर्निश अ रिटर्न ऑन इनकम बाय द डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस, वेयर उस सूरत में कि पर्सन हैज डाइड तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी वो नोटिस दे सकता है। पर्सन हैज बिकम बैंकरप्ट एंड गॉन इनटू लिक्विडेशन, उसको भी कमिश्नर के पास पावर है, वो नोटिस दे के रिटर्न मांग सकता है। और द पर्सन अबाउट लीव टू पाकिस्तान परमानेंटली and the commissioner otherwise consider it appropriate to require such a return। और कमिश्नर के पास पावर है इस सेक्शन के तहत कि वो इस सूरत में कि कोई अगर उसका वो SSC फौत हो गया है तो उसके जो वर्षा हैं उनको नोटिस दे के उससे रिटर्न मांग सकते हैं। बैंकरप्सी के सूरत में, बैंकरप्सी का भी लॉ आपको पता है पाकिस्तान में 2014 के बाद आया है, इससे पहले पाकिस्तान में बैंकरप्सी का कोई लॉ में मौजूद नहीं थी क्लॉज। पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान, अगर जो परमानेंटली छोड़ रहा है उसको नोटिस दिया जा सकता है एंड एनी अदर एप्रोप्रिएट कमिश्नर थिंग उसको नोटिस दिया जा सकता है। नोटिस में दैट इज इंपॉर्टेंट विच नॉर्मली वी स्किप, तो मैं ये कहूंगा कि इसको आप देखें। अ नोटिस अंडर सेक्शन 4 में बी इशूड इन रिस्पेक्टिव ऑफ वन और द मोर लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। एवरीबॉडी नोज कि करंट ईयर एंड द लास्ट 5 ईयर 6 ईयर तक की नोटिस दे के रिटर्न कमिश्नर मांग सकता है या उसका केस ओपन कर सकता है। सिमिलरली प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर एनी लास्ट 5 ईयर, तो उस सूरत में वो उसको मोर देन 1 और मोर देन 10 ईयर्स का भी नोटिस दिया जा सकता है, नॉट ओनली 5 ईयर्स। अगर ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके लिए वो अप टू 5 ईयर्स जाएंगे, प्लस करंट ईयर मीन 6 ईयर्स हो गए। और अगर वो पर्सन जिसने रिटर्न फाइल नहीं की तो उसमें कमिश्नर के पास पावर है, ही कैन आस्क हिम फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर मोर देन 10 ईयर्स। Time limitation shall not apply if Commissioner Inland Revenue is satisfied that a person has foreign income or own foreign assets। और अगर टाइम लिमिटेशन उस सूरत में नहीं है कि अगर कमिश्नर इज सेटिस्फाइड कि पर्सन के कोई फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स हैं, तो वो उसमें टाइम लिमिटेशन नहीं है, वो जब भी उसने एसेट्स बनाए या उनकी इनकम है वो मोर देन 10 ईयर्स का भी नोटिस उसको दिया जा सकता है। पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, कौन से वो पर्सन हैं जिनको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर सोलली of subsection 1 of section 114, a widow, an orphan below the age of 25, a disabled person, or in case of non-resident person, which we have already discussed, any person who is not obliged to furnish a return for a tax year because all the person income is subject to final taxation। अगर उसने FTR रिटर्न या स्टेटमेंट ऑलरेडी फाइल की हुई है जो 5, 6, 7 सेक्शन 148, 151 इंपोर्ट के सिलसिले में,
उसने 152 की, 154, 156 जो डिफरेंट सेक्शन है, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल रिटर्न फाइल करे। 116 एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि रिटर्न के साथ उसने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है। सेक्शन 116 के तहत कमिश्नर के पास पावर है, he can writing require any person, individual or to furnish on the date specified hereinafter referred to as the wealth statement, total asset उसमें, total liabilities as on specified date और जो डेट उसमें मेंशन की जाए, total asset and liabilities of person, spouse, minor, children and other dependent as the date of as on that date or date specified। उसमें जो वेल्थ स्टेटमेंट का वो पूरा फॉर्मेट है, उसमें स्पाउस के, अगर उसके माइनर चाइल्ड है तो उनकी भी एसेट्स, उनके नाम जो हैं वो भी वहां पे डिक्लेयर करना जरूरी है, अगर वो उनकी सेपरेट रिटर्न फाइल नहीं हो रही। इसके अलावा एनी एसेट ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड और पीरियड स्पेसिफाइड सच नोटिस एंड द कंसिडरेशन फॉर दैट ट्रांसफर। और अगर इस पीरियड के दौरान कोई एसेट ट्रांसफर हुआ है और उसके अगेंस्ट उसने जो भी कंसिडरेशन है, either it's he has received some money, either he has is a gift or any other inherited है, that must be disclosed। और उसके साथ साथ टोटल एक्सपेंडिचर, उसका अपने, उसके बच्चों के, उसकी फैमिली के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो भी वेल्थ स्टेटमेंट में, यू पीपल नो, वो भी मेंशन करने होते हैं। इसके साथ साथ रिकॉन्सिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट इज आल्सो जरूरी, इज कंपल्सरी कि वो फाइल करें, जिसमें सोर्सेज उसने बताने होते हैं एवरी पर्सन, और उसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर, और फिर जो उसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज का इम्पैक्ट है वो शो करना होता है। Every resident taxpayer being an individual filing a return of income for any tax year shall furnish a wealth statement and wealth reconciliation statement for the year along with such return। तो ये एक ब्रीफ सा था, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये चीजें बहुत सारे हमारे मेंबर्स को ऑलरेडी मालूम है, कुछ उसमें लॉ की चेंजिंग थी जो मैंने डिस्कस की। तो 114 की रिटर्न क्यों जरूरी है, किस किस को जरूरी है, कौन से उसमें एग्जाम्प्ट है, 115 क्या कहता है और 116 सेक्शन क्या कहता है, दैट वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट इज every person other than a company or AOP filing statement under section 115 filing under FTR shall file a wealth statement along with reconciliation of wealth statement। और हर पर्सन मींस एवरी मेंबर जिसे हम कहते हैं, जैसे अगर एओपी की बात करते हैं मेंबर, और डायरेक्टर बात करते हैं अगर वो कंपनी का है, तो उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है रिटर्न के साथ और रिकॉन्सिलेशन। रिवीजन ऑफ रिटर्न, ये लॉ में एक चेंज, अच्छी चेंज आई लास्ट ईयर, और उसमें रिटर्न कैन बी रिवाइज विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मुझे कहा जा रहा है कि 10 मिनट की ब्रेक कर लें नमाज की, तो इट्स अ बेटर कि हम पहले नमाज अदा कर लें और फिर इसको रिवीजन ऑफ रिटर्न के सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।
एक म्यूट कर। जी आसिम साहब, वी शुड स्टार्ट नाउ। आई थिंक 10 जी मिनट्स। सर, प्लीज थोड़ा सा सर, अगर वॉइस आपकी इंक्रीज हो जाए। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि वॉइस थोड़ी लो आ रही है। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ पे ठीक आ रही है, आई थिंक सो। उनको जरा लिखेंगे, वो अपना सिस्टम से चेक करें, वहां पे उनके जो वॉल्यूम है वो लो ना हुआ हो, उसको चलो सेट करें। ठीक है, ओके सर, ओके ओके क्योंकि बाकी कुछ लोगों को, बाकी जो हमारे साथ भी हैं, वो कह रहे हैं तो ठीक है बात। चले, फिर बेहतर भी है, मैं एहतियात करता हूँ। बेहतर है सर, ठीक है ठीक है, ओके सर, प्लीज प्रोसीड सर। जी, मेरा ख्याल है सारे लोग नमाज पढ़ के आ गए। लेट्स स्टार्ट नाउ। लॉ में ये एक अच्छी चेंज आई है जिसमें रिवीजन ऑफ रिटर्न्स का था, क्योंकि बहुत ज्यादा सारी कम्युनिटी की तरफ से और टैक्स पेयर्स की तरफ से था कि जी रिवीजन ऑफ रिटर्न्स मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि उसमें कमिश्नर को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने लॉ में अब गिवन है कि रिटर्न कैन बी रिवाइज विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने उसमें कोई एरर हो गया है या आप किसी वजह से रिवाइज करना चाहते हैं तो विद इन 60 डेज हो सकती है। और इसमें लास्ट अमेंडमेंट लॉ में एक और अच्छी चेंज आई है, वो विच इज दैट where the commissioner has not made an order of approval in writing for revision of tax before the expiry of 60 days। और अगर आप किसी एक तो 60 डेज तो वैसे ही आपके पास अवेलेबल है, अदरवाइज अगर आप अप्लाई कमिश्नर को करते हैं और उसने ऑर्डर 60 डेज के अंदर नहीं किया, तो देन इट शुड बी ग्रांटेड एज रिटर्न रिवाइज्ड and deemed to have been granted by the commissioner and conditions specified in clause B shall not apply। और अगर आपने अप्लाई किया और अप्रूवल इन राइटिंग में नहीं आया 60 डेज के अंदर, तो देन इट शुड बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड एज कमीशन एज ऑर्डर। तो ये एक अच्छी चेंज है कि जिसमें आपका जो टाइम अदरवाइज 4 महीने 6 महीने लग जाता था, उससे टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जी। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि जी सीक्वेंस क्या है आज की प्रेजेंटेशन का। तो मैंने इनिशियली बताया था कि ये एक लर्निंग एस्पेक्ट से रखी गई है जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस होंगे ब्रीफली। मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और लॉ में जो अमेंडमेंट्स आई हैं पिछले 2-3 सालों में वो डिस्कस करेंगे, उनका इम्पैक्ट। और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपडेट और जो ऑर्डिनेंस हुआ है उस पर आदिल साहब ब्रीफ करेंगे मेरी प्रेजेंटेशन के बाद। Now we move on to 116A, foreign income and asset statement. Nowadays it's very important after जो एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला उसके बाद, तो उसमें कुछ चेंजिंग आई हैं। और वो ये है कि जी एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल हैविंग फॉरेन इनकम ऑफ नॉट लेस देन $10,000 or having foreign asset with a value of not less than $100,000 shall furnish a statement hereinafter referred to as foreign income and asset statement। तो ये अगर कोई रेजिडेंट टैक्स पेयर है और उसकी इनकम $10,000 से ज्यादा या उसके एसेट $100,000 से ज्यादा है, तो फिर उसने ये फाइल करना उसके लिए लाजमी है। तो ये एक लॉ में चेंज आई है। और द पर्सन टोटल फॉरेन एसेट लायबिलिटी एज अ लास्ट डेट ऑफ द टैक्स ईयर, तो उसने अपनी जो भी वेल्थ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्मेट है, उसके मुताबिक उसने अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसमें डिक्लेयर करनी है। सिमिलरली इसी में एनी फॉरेन एसेट ट्रांसफर, अगर उसने कोई ट्रांसफर किया है बाय पर्सन ऑन एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड कंसिडरेशन ऑफ दैट ट्रांसफर, ये उसने मेंशन करनी है अगर उस साल में उसने कोई ट्रांसफर किया है और उसके अगेंस्ट जो भी कंसिडरेशन है। completed particulars of foreign income, उस पे जो expenditure derived during the tax year and expenditure wholly and necessarily for the purpose of driving the said income, वो भी उसी में डिक्लेयर करने पड़ेंगे। 116A में फॉर्मेट जो अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट और फॉर्म अवेलेबल है ऑफ FPR। नेक्स्ट,
इसमें अगेन कमीशन हैज द पावर, उसके पास पावर है कि वो बीइंग एन इंडिविजुअल हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ reason to be recorded in writing was required to furnish a foreign income and asset statement under the ordinance, but who has failed to do so furnish the foreign income and statement on the date specified in the notice. तो कमीशन के पास पावर है, अगर उसके ओपिनियन में कि किसी पर्सन के एसेट्स हैं और उसने रिटर्न फाइल नहीं की या इनकम है, he has the power, वो उसको नोटिस देके रिटर्न मांग सकता है. Agreement for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion. 107 सेक्शन है जी, एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन. ये भी मैं उसी रेफरेंस से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज होते हैं और टैक्स पेयर्स की तरफ से, तो मैंने ये सेक्शन ऐड किया है. एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस डबल टैक्सेशन मींस कि जो ट्रीटीज बनते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट के, कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं और उसमें किस हद तक बार है और उसमें क्या चेंजिंग आई है, ये इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे. फेडरल गवर्नमेंट में एंटर इनटू टैक्स ट्रीटी, अ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, अ मल्टीलैटरल कन्वेंशन एंड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट और मैकेनिज्म फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फिस्कल एवेजन और अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस. गवर्नमेंट मुख्तलिफ मुल्कों के साथ एक एग्रीमेंट और ट्रीटी साइन करती हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और वो मौजूद है हमारे लॉ में. और उसमें मेन पर्पस ये होता है कि डबल टैक्सेशन ना हो, कि अगर एक मुल्क में उसने टैक्स पे किया है तो वो पाकिस्तान में भी दोबारा उसको टैक्स ना दें. अगर उसके पास प्रूफ मौजूद है तो उसका वो 100% टैक्स क्रेडिट उसको पाकिस्तान में मिल जाएगा, वो अगर यहाँ पे रिटर्न फाइल करता है. ओनली थिंग विच वी हैव टू सी कि अगर टैक्स रेट वहां पे ज्यादा है और यहाँ पे आपने टैक्स जो पे किया है वो उसका 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. अगर यहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा है तो फिर जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम इम्पोज्ड अंडर द ऑर्डिनेंस और एनी अदर लॉ फॉर एंड अंडर द corresponding law in force in that country. 107 says board shall have the power to obtain and collect information when solicited by any other country under a tax treaty sorry, a tax information exchange agreement, a multilateral conventions, any amendment, a similar arrangement or mechanism. तो बोर्ड के पास ये पावर है, वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इसमें अब चेंज ये है कि अंडर सेक्शन 216 इसमें ये पहले ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, जो कि मैं अगले सेक्शन में पढ़ूंगा कि जो कि अमेंडमेंट लॉ में ये अब चेंज आई है. द प्रोविजन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 Section 216 of this ordinance, any information received or supplied and any communication or correspondence made under a tax treaty, a tax information exchange agreement or multilateral convention, similar arrangement mechanism shall be confidential. पहले ये confidential थे, लेकिन जो enabling clause आई है, जो जिसमें amendment ordinance के मुताबिक उसमें ये बार खत्म कर दी गई है. Public servants are barred from disclosing any information relating to income tax filing, evidences or proceeding of any taxpayer. Certain exceptions to the general provision are also contained in the said section whereby information can be disclosed to specified person, organization or authority. तो ये एक enabling clause आई है जिसके तहत वो particular specified person, organization, authorities को वो information disclose की जा सकती है. An amendment made through the second amendment ordinance जो हम डिस्कस कर रहे हैं, FMU Financial Monitoring Unit established under Anti-Money Laundering Act 2010 has been included the list of such exception. तो ये AML का भी जो लॉ और एक्ट 2010 है उसमें इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है. We do not fall within the ambit of, जिसके तहत इनके पास भी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जो सेक्शन 216 की है वो इसके बाहर नहीं लगाती. FMU के तहत, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अगर उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को तो वो डिपार्टमेंट से ली जा सकती. डिडक्शन नॉट अलाउड, ये भी एक लॉ में चेंज आई जो पिछले साल, इसकी खासा इम्पैक्ट आएगा बिजनेस में. अभी तो खैर एक क्राइसिस की पोजीशन है, शायद ये चीज इतनी ज्यादा एप्लीकेबल ना हो, अदरवाइज लॉ में एक अमेंडमेंट है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं. An amount of commission paid or payable in respect of supply of product listed in the third schedule of Soil Tax Act 1990
where the amount of commission paid exceed 0.2% of the gross amount of supplies thereof, unless the person is registered under Sales Tax Act and is appearing ATL. तो अभी पहले इससे कमीशन एक्सपेंस क्लेम किए जाते थे सेक्शन 21 के तहत, तो अभी इसमें थोड़ी सी थ्रेशोल्ड कह लें या उसमें एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है कि वो जो थर्ड शेड्यूल आइटम के तहत रजिस्टर्ड सेल टैक्स 1990 में, तो उनकी जो कमीशन है एक्सीड 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाई, वो अलाउ नहीं होगी अगर वो ATL लिस्ट में वो अपीयर नहीं हो रहे उस सूरत में। तो 21C जो डिडक्शन नॉट अलाउड, एक नया सेक्शन ऐड किया गया है कि 0.2% से ज्यादा ग्रॉस अमाउंट का एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा अगर वो ATL की कंडीशन पूरी नहीं करेगा। नेक्स्ट 75A, ये लास्ट ईयर में एक क्लॉज आई, एडिशन आई है लॉ में, जिसमें एक थ्रेशोल्ड बना दिया गया है कि परचेज ऑफ एसेट्स कैसे किए जाएंगे लॉ के तहत। परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, नो पर्सन कैन परचेज शैल परचेज immovable property having fair market value greater than ₹5 million। अगर वो immovable property है तो उसकी बार है 5 मिलियन से ज्यादा विदाउट क्रॉस चेक परचेज नहीं हो सकेगी प्रॉपर्टी, और एनी अदर एसेट अदर देन इमूवेबल एसेट, अगर वो है मूवेबल एसेट है तो उसकी जैसे इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो वो 1 मिलियन से ज्यादा अगर होंगे अदर देन क्रॉस चेक, DD, पे ऑर्डर्स और एनी ट्रांसफर अमाउंट बैंक टू बैंक, वो अलाउ नहीं होंगे। और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लॉज है, इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो भी अलाउ नहीं की जाएगी। तो ये लॉ में एक चेंज आई है जो कि अब ये लॉ का हिस्सा है। तो वी हैव टू सी कि जब भी अपने आप एज ए मैं कंसल्टेंट बात करूं तो अपने क्लाइंट को एडवाइस करें कि भाई कोई परचेजिंग हो तो थ्रू क्रॉस चेक करें इस लिमिट से ज्यादा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 5 मिलियन और अदर एसेट्स में 1 मिलियन की बार है। एम्पावरिंग कमिश्नर टू फ्रीज एसेट पर्सन लिविंग पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ी क्लॉज आई है जो पावर दी गई है कमिश्नर को 145(5) के तहत। कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफशोर जुरिसडिक्शन, क्योंकि आपको पता है पनामा लीक्स के बाद बहुत सारी, जैसे पहले भी हमने क्लॉज डिस्कस की कि रिटर्न्स फाइल करने जरूरी हैं, कमिश्नर को पावर दी गई है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का चेंज आई है। उसी सीक्वेंस में ये भी एक चेंज आई है कि कमिश्नर को पावर दी गई है कि कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफशोर जुरिसडिक्शन to freeze any domestic asset of the person, including any asset beneficially owned by a person for a period of 120 days or till the finalization of the proceeding under this ordinance, whichever is earlier, where commissioner believe that person leaving Pakistan may be involved in offshore tax evasion। अगर डिपार्टमेंट के पास या कमिश्नर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कि पर्सन पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है और उसके पास वो इन्वॉल्व है यानी ऑफशोर टैक्स एविजन में, तो वो 120 दिन के लिए उसके लोकल एसेट्स या उसके जो बेनिफिशियली एसेट्स ओन कर रहे हैं उसको वो फ्रीज कर सकता है टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ 120 डेज व्हिचएवर इज अर्लियर। तो ये एक प्रोसीडिंग की क्लॉज ऐड की गई है पिछले लॉ में। 181D बिजनेस लाइसेंस स्कीम, यू नो के अमेंडमेंट, और पहले ये फाइनेंस एक्ट में आया 2019-20 वाले में, और फिर उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट में इसकी प्लेंटीज भी डिस्कस की जा चुकी हैं। बिजनेस लाइसेंस स्कीम सेक्शन 181D says every person engaged in any business, profession or vocation shall be required to obtain and display business license as prescribed by the board। पहले लॉ में ये लिखा गया कि जैसे भी लॉ में बोर्ड प्रेस्क्राइब करेगा उसके तहत उसने अपना बिजनेस लाइसेंस लेना है, और अमेंडमेंट लॉ में उसमें प्रेस्क्राइब कर दिया गया है कि किसको किस सूरत में वो बिजनेस लाइसेंस लेना है और उसकी पेनल्टी कितनी है अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगा। 108A जो लॉ में चेंज आई कि रिपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट CAs और CMAs, तो सेक्शन 108A एम्पावरिंग द कमिश्नर कि रिपोर्ट फ्रॉम एनी इंडिपेंडेंट वो रिपोर्ट मांग सकता है CMA और CA टू डिटरमिन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एसेट, प्रोडक्ट, सर्विस और एक्सपेंडिचर इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एट आर्म लेंथ। अगर उसमें वो प्रॉपर डिक्लेयर नहीं है और उसमें प्रॉफिट को और फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करना है, कमीशन है द पावर के वो उसमें प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट मांग सकते हैं। और उसके बाद दूसरी पावर भी है कि अगर वो पहली रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है, ही हैज द पावर, ही कैन आस्क फॉर अनदर ऑडिटर टू गिव अनदर रिपोर्ट फॉर दिस डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज और एक्सपेंडिचर। 120B, ये एक बहुत अच्छी क्लास पिछले साल में ऐड हुई
जब एमनेस्टी आई एसेट्स की, तो उसके साथ साथ बहुत सारी ये क्वेश्चंस थे कि जी इसके दोबारा क्वेश्चन तो नहीं होगा, तो ये 120B के तहत लॉ में ऐड कर दी गई, इम्यूनिटी दी गई, immunity for person availing tax amnesty 2019, where any person entitled to declare undisclosed asset, undisclosed expenditure and undisclosed sale under the asset declaration ordinance 2019 declare such asset, expenditure, sale to pay tax. No proceeding shall be undertaken under this ordinance in respect of such declaration. अगर किसी ने एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 के तहत कोई भी एसेट डिक्लेयर किया है, अगर उसने कोई एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किया है या उसने कोई सेल, तो वो उसकी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती अगर उसने प्रॉपर डिक्लेरेशन फाइल की है और प्रॉपर टैक्स पे किया गया है। तो ये एक अच्छी क्लॉज ऐड की गई थी ताकि वो पिछले सालों की अगर वो डिक्लेयर हो चुकी है एमनेस्टी में, तो उसको पिछले सालों का क्वेश्चन ना किया जाए। अनएक्सप्लेन्ड इनकम 111 एक बहुत जो ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है लॉ में, और पनामा लीक के बाद इस सेक्शन की मजीद इंपॉर्टेंस थी, तो दैट्स वाई मैंने ये इसको ऐड किया है डिस्कशन के लिए। अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट वेयर एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनी पर्सन हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट और इज ऑनर ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल आर्टिकल, a person has incurred expenditure, any person has concealed income or furnished inaccurate particulars of income including, अगर कोई बुक्स में कोई क्रेडिट अमाउंट आई है, कोई इन्वेस्टमेंट है, ऑनर ऑफ द मनी और वैल्यूएबल आर्टिकल, या उसने कोई एक्सपेंडिचर या कोई उसने कंसीलमेंट की है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज सेक्शन 111 उसको एनफोर्स करेगा अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स में, जिसमें ये कहा जाता है इसके साथ साथ द सप्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्शन, sales or any amount chargeable to tax, or suppression of any item of receipts liable to tax in whole or part, and the person offers no explanation, और उसके पास उसका सोर्स अवेलेबल नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन मींस कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये सेल या ये एक्सपेंडिचर या ये एसेट या ये जो अमाउंट क्रेडिट मैंने अपनी बुक्स में की है, इसकी मैंने इन्वेस्टमेंट या मेरे पास सोर्सेज कहाँ से आए, अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो उसको एड बैक कैसे होगा, ये 111 सेक्शन डील करता है। And the person offers no explanation about the nature and source of the amount credited or the investment money funds etc. जो हमने डिस्कस किए, with the expenditure was made, suppression of any production, sale, receipt of any amount chargeable to tax offered by the person is not in a position, commissioner opinion satisfactory, the amount chargeable tax liable to tax shall be included in the person income chargeable to tax under the head income from other source to the extent it is not adequately explained. तो उतनी अमाउंट जितनी वो एक्सप्लेन नहीं, अगर पूरी अमाउंट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सोर्सेज, तो 100% अदर इनकम के तौर पे, सोर्सेज के तौर पे उसकी इनकम में ऐड हो जाएगी और टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, और अदरवाइज अगर उसने कुछ सोर्सेज एक्सप्लेन कर दिए हैं तो जो डिफरेंस है वो ऐड किया जाएगा। अगर इसके साथ साथ अगर उसने कुछ अमाउंट ये शो की कि जी एग्रीकल्चर इनकम है, अक्सर हम देखते हैं कि जी वो सोर्सेज में एग्रीकल्चर इनकम शो कर देते हैं, तो अभी क्योंकि प्रोविंशियल टैक्स लग चुके हैं 18वीं तरमीम के बाद, अमेंडमेंट के बाद 18th अमेंडमेंट, तो उस सूरत में अगर उसने एग्रीकल्चर इनकम की तो सच एक्सप्लेनेशन शैल बी एक्सेप्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम वर्क बैक ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर टैक्स पेड अंडर द रेलिवेंट प्रोविंशियल लॉ। तो अगर रेलिवेंट प्रोविंशियल लॉ में उसने अगर जितना एग्रीकल्चर का टैक्स पे किया हुआ है उतनी उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा, रिमेनिंग ऐड होगी। क्यों, फॉर एग्जांपल पंजाब में पहले जैसे लास्ट ईयर में 10% एग्रीकल्चर टैक्स था, तो अगर उसने वो कमिश्नर डीसी को ऑफिस में वहां पे जमा कराया हुआ है तो उस सूरत में वो एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट की जाएगी। अगर वो जमा नहीं हुआ तो उस सूरत में वो सारी अमाउंट ऐड होगी और उसमें नॉर्मल स्लैब का टैक्स जो है वो लगेगा उस पे। नेक्स्ट, an amount shall be included in the person income chargeable to tax in the tax year। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है और इसको समझने की जरूरत है। In the tax year to which the such amount relates if the amount representing investment, money, valuable article expenditure situated or incurred in Pakistan or concealed income is Pakistan source। अगर वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान सोर्स है, उसका एक्सपेंडिचर या इनकम है, तो उस सूरत में वो ऐड उस साल में होगी जिस साल से वो रिलेट कर रही है इनकम। मींस कि अगर वो 10 साल पहले है या 6 साल पहले है तो उस साल में जाके ऐड करेगा और वो फिर करस्पॉन्डिंग ईयर्स में उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन सेकंड में वो ये कहता है
in the tax year immediately preceding tax year in which the investment money value article expenditure is discovered by the commissioner is situated or incurred outside Pakistan and concealed income is foreign source. अगर उसकी foreign source है और outside Pakistan expenditure हुआ है या income हुआ है तो फिर वो पिछले साल जिस साल में डिटर्मिन हुआ उसके preceding year में भी हो सकता है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन दे दी है एफपीआर ने, वो हम नेक्स्ट अगली स्लाइड में पढ़ेंगे. एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट. रिमूवल ऑफ डाउट के लिए इट इज क्लैरिफाइड बाय एफबीआर दैट वेयर द इन्वेस्टमेंट मनी वैल्यूएबल आर्टिकल एक्सपेंडिचर acquired or incurred outside Pakistan in a prior tax year is liable to be included in the income tax year of 2018 and onward on the basis of discovery made by the commissioner during tax year 2019 and onward and the person explains. अगर 2019 में कोई चीज ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है कमिश्नर के और वो पिछले साल 2018 में ऐड की जाएगी. ये एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन दी है एफबीआर ने फॉर आउटसाइड पाकिस्तान इनकम से रिलेटेड. फॉर द रिमूवल डाउट, नेक्स्ट द एक्विजिशन ऑफ सच एसेट एक्सपेंडिचर फ्रॉम सोर्सेज relating tax year which such asset was acquired expenditure was incurred, such explanation shall not be rejected. और कमिश्नर को बाहर किया है कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकता on the basis that source does not relate to tax year in which the amount chargeable tax is to be included. कि वो ये नहीं आपको कह सकता कि ये 10 साल पुरानी है या 5 साल पुरानी है, वो पिछले साल में वो ऐड होगी अगर वो आउटसाइड पाकिस्तान सोर्स इनकम है. Next, where the declared cost of an investment, valuable article expenditure and investment expenditure, the commissioner having regard to all the circumstances included the difference in the person income chargeable tax under the head income from other sources in the tax year to which the investment valuable article or the expenditure relates. ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम है तो वो फिर जिस साल की है उस साल में ऐड की जाएगी. सब्जेक्ट सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई. अब ये 111 सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता. टू ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है तो इसलिए इसको समझना आई थिंक सो कि वेरी नेसेसरी एंड स्पेशली फॉर दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड कंसल्टेंसी और मेंबर फ्रेश मेंबर्स हैं तो मैं समझता हूँ कि वो इन सेक्शन जो हमने बात कर रहे हैं उनको केयरफुली देखें. इवन यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट अस. अब मैं इसकी नेक्स्ट बात करता हूँ कि सब सेक्शन डज नॉट अप्लाई. किस पे अप्लाई नहीं होता. टू एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू ए नॉर्मल बैंकिंग चैनल not exceeding 5 million rupees in a tax year that is in cash into rupees by a scheduled bank and certificate from such bank produced to that effect. वो लॉ ये कहता है कि पहले इससे पहले कोई थ्रेशोल्ड नहीं था. जितनी भी अमाउंट आप बाहर से मंगवाते थे तो वो सारी अगर थ्रू बैंकिंग चैनल है और उस पर बैंक आपको सर्टिफिकेट और एनकैशमेंट दे रहा है तो वो सारी आपका वाइट सोर्स होता था, वाइट मनी कहलाता था. 2018 का लॉ आया जिसमें उन्होंने इसको 10 मिलियन तक बाहर कर दिया. उसके बाद 2019 का जब लॉ आया तो उन्होंने इसको 5 मिलियन तक ले गए. इसको कम से कम कर रहे हैं कि 5 मिलियन तक एक साल की बात हो रही है. एक साल में 5 मिलियन आएगा थ्रू नॉन बैंकिंग चैनल, वो नहीं पूछा जाएगा. उससे ऊपर अगर अमाउंट होगी तो उस सूरत में फिर आपको वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी. इसका क्वेश्चन 5 मिलियन तक स्टिल नहीं है अगर वो बैंकिंग चैनल से आता है और उसका सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक इज अवेलेबल. सैलरी टैक्सेशन में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल डिस्कस करके एक दो और इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं उनको कवर करना चाहता हूँ. एवरी पर्सन हैज टू डिडक्ट, एवरीबॉडी नोज कि जब भी वो सैलरी पे करेंगे उन्होंने टैक्स काटना है उस स्लैब के तहत उस साल के और एवरेज रेट ऑफ टैक्स के मुताबिक. और अंडर सेक्शन उसको जो एडमिसिबल एक्सपेंस है जो अलाउ है सेक्शन 61, 62, 63, 64 जो कि जस्ट जिसके टैक्स क्रेडिट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर, वो सारे उसको माइनस करके ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर टैक्स विदहेल्ड फॉर द एम्प्लॉय अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर द टैक्स ईयर एंड एनी एक्सेस डिडक्शन, अगर कोई ज्यादा डिडक्शन हो गई है और डेफिशिएंसी राइजिंग आउट ऑफ एनी प्रीवियस, उसकी एडजस्टमेंट भी टैक्स एम्प्लॉयर कर सकता है. फेलियर टू मेक डिडक्शन ड्यूरिंग द, अगर उस साल में उसने नहीं की कुछ मंथ में या साल में तो वो नेक्स्ट ईयर में भी उसकी डिडक्शन की जा सकती है या ईयर एंड पे भी की जा सकती है. एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, इसमें ये एक चेंज आई है इसको देखना जरूरी है.
Every person responsible making payment for directorship or fee for attending board meetings or such fees, whatever name called, shall at the time of payment deduct tax at the rate 20% of the gross amount. तो अगर किसी मीटिंग फी, बोर्ड मीटिंग की कोई अगर आपने पेमेंट करनी है तो वो उस पे स्ट्रेट रेट जो है 20% का, उसको वो ग्रॉस अमाउंट पेबल टैक्स उसमें 20% रेट है. टैक्स डिडक्शन अंडर सब सेक्शन 3 शैल बी एडजस्टेबल. और ये जो डिडक्ट किया जाएगा सेक्शन 3 के तहत, ये एडजस्टेबल टैक्स है. मींस जो डायरेक्टर्स पे मीटिंग का 20% टैक्स है, ये एडजस्टेबल टैक्स है, वो रिटर्न्स में एडजस्ट किया जा सकता है. 152 पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन व्हिच सेज एवरी पर्सन an amount of royalty or fee for technical services, अगर कोई technical services है, to a non-resident person that is chargeable to tax under section 6 deduct tax gross amount paid at the rate specified in first schedule. फर्स्ट शेड्यूल के तहत उसके रेट दिए हुए हैं. रॉयल्टी में और टेक्निकल सर्विस में जो पहले 15% थे, जो इंक्रीज करके 20% पे. मैं अभी रेट पे ज्यादा फोकस नहीं करता, उसके लिए हम एक सेपरेट सेक्शन रखेंगे विद होल्डिंग टैक्स का, जिसमें हम ये रेट्स पे बात करेंगे. अभी ये है कि 152 सेक्शन ये कहता है कि कोई भी पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करनी है तो आपने उस पे टैक्स डिडक्ट करना है, चाहे वो रॉयल्टी की शेप में है, टेक्निकल सर्विसेज की शेप में है, बाय वे ऑफ एडवांस है, इंक्लूडिंग पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू अ नॉन रेजिडेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ contract or subcontract under construction, assembly or installation of project of Pakistan, including a contract for a supply of supervisory activities in relation to such project. चाहे वो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे सब कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्टॉलेशन है, असेंबली और सुपरवाइजरी एक्टिविटीज हैं, उस पे टैक्स आपने डिडक्ट करना है. एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और सर्विस रेंडर्ड, और उसके अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस है, उस पे टैक्स डिडक्ट करना है. इसमें नहीं, आपको पता है टीवी चैनल्स जब बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके नॉन रेजिडेंट में कुछ चैनल्स क्या जो सर्विसेज वो दे रहे हैं और दुबई से दे रहे हैं या किसी और मुल्क से दे रहे हैं, तो उनके लिए भी कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज रेंडर्ड बाय टीवी सैटेलाइट चैनल को डिडक्ट किया जाएगा एज पर शेड्यूल. Shall deduct tax from the gross amount payable under the contract at a rate specified in first schedule. Every person making payment of insurance premium है, अगर री इंश्योरेंस है टू ए नॉन रेजिडेंट, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने री इंश्योरेंस कराई होती है, वो 3 टाइम्स हुई होती है, तो उस सूरत में जो बाहर पेमेंट की जाएगी नॉन रेजिडेंट अगर री इंश्योरेंस का है, उस सूरत में भी टैक्स डिडक्ट किया जाएगा एज पर फर्स्ट शेड्यूल जो रेट अवेलेबल है. 1AAA, every person making payment for advertisement services to a non-resident media person at a rate specified, उसमें भी टैक्स डिडक्ट किया जाएगा. The tax deductible under section 1A shall be minimum, और ये जो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा ऑन ए नॉन रेजिडेंट इनकम पे, उसको पेमेंट्स पे या सर्विसेज पे इज कॉल्ड एज ए मिनिमम टैक्स. पहले ये मिनिमम टैक्स नहीं था, लॉ में चेंज आई है, मिनिमम कर दिया गया है. सिमिलरली द टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 1AA, जो प्रीवियस हमने पढ़ा सेक्शन, वो भी मिनिमम टैक्स है टू इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन अराइजिंग आउट ऑफ सच पेमेंट. तो इसको उन्होंने मिनिमम टैक्स में ले गए हैं. पेमेंट टू ए नॉन रेजिडेंट, एवरी बैंकिंग कंपनी, सिमिलरली आपको पता है कि बैंकिंग कंपनी, ये भी एक लॉ में चेंज आई है, 1C ऐड हुआ है. रिमिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान अमाउंट फी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विस, ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज की अगर कोई पेमेंट होगी, charge to tax under section 6 to a non-resident on behalf of any resident or PE of non-resident अगर है, permanent establishment of non-resident in Pakistan है, shall deduct tax from the gross amount paid at the rate specified in first schedule. तो PE का भी हो और चाहे ऑफ नॉन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को डायरेक्टली पे हो, दोनों सूरतों में ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज की फी पे भी टैक्स डिडक्ट होना है. Similarly, every person making a payment in full or पार्ट बाय वे एडवांस टू ए PE, अगर PE परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसकी पाकिस्तान में, तो उस सूरत में फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्सेप्ट वेयर द सेल इज मेड बाय इंपोर्टर, अगर उसमें सेक्शन 148 की तरह इंपोर्टर है एंड इन द सेम कंडीशंस है, उस सूरत में डिडक्ट नहीं होगा, अदरवाइज वो डिडक्ट किया जाएगा. फॉर द रेंडरिंग ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट other than a contract for sale of goods or rendering providing services, these are all including, जिसमें टैक्स डिडक्ट किया जाएगा एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. नेक्स्ट है किस किस पे ये 152 सेक्शन अप्लाई नहीं होता. 1AA shall not apply, subsection 1AA shall not apply to an amount with the written approval of the commissioner that is taxable to a permanent establishment in Pakistan for a non-resident. अगर PE उसकी पाकिस्तान में है
और अगर वो राइटिंग में कमिश्नर को अप्लाई करता है और कमिश्नर अप्रूव कर देता है विद रीजन कि जी ये इसका टैक्स दूसरे मुल्क में कट रहा है, जैसे ट्रीटीज होती हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उस सूरत में उसको या किसी और रीजन पे अलाउ करता है, उस सूरत में उसका टैक्स नहीं काटा जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज, इसी में एडिशन है, टैक्स डिडक्टेबल अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्ट 2A शैल बी मिनिमम टैक्स, और ये मिनिमम टैक्स होगा। और एंड द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉजेस of section 12 153 shall mutatis mutandis apply and similarly apply as section 153 152 जिसपे और कौन सी क्लॉज है जिनमें अप्लाई नहीं होगा, 149 150 156 233, लेकिन इसकी अप्रूवल कमिश्नर से लेनी पड़ेगी and with the written approval of commissioner that taxable permanent establishment in Pakistan of non-resident. Similarly, अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में अंडर सेक्शन 172 के तहत, तो उसका भी अगर रिटर्न अप्रूवल होगी तो उस सूरत में टैक्स डिडक्शन, इन अदर वर्ड्स अगर उसको एग्जाम्ड कमिश्नर करता है डिपार्टमेंट, उस सूरत में टैक्स नहीं कटेगा, अदरवाइज यू हैव टू डिडक्ट। Where the person claims to be representative or non-resident person for the purpose C subsection, the person shall file a declaration, जैसे हमने पहले बात की, declaration फाइल करेगा और ये वो कमिश्नर का पावर है कि वो उसको एग्जाम्ड कर दे या उसको रिड्यूस रेट पे टैक्स डिडक्शन करे, इंस्टेड ऑफ 15 या 20% के रिड्यूस रेट पे भी अलाउ कर सकता है। 153 सेक्शन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि लोकल जितनी पेमेंट्स हैं उसको डील करता है, तो इस पे भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। Every prescribed person making a payment in full or part, including a payment by way of advance to a resident person or PE establishment in Pakistan of a non-resident person, sale of goods for rendering or providing of services, execution of contract or other than contract for the sale of goods at the time of making payment deduct tax, तो वो डिडक्ट करेगा टैक्स एज पर फर्स्ट शेड्यूल डिवीजन 3 पार्ट 3। तो ये शेड्यूल के तहत कोई भी पेमेंट करनी है तो वो एज ए प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि कौन कौन इसमें फॉल करता है, किसने डिडक्ट करना, बल्कि आई थिंक सो कि पहले हम प्रेस्क्राइब पर्सन की पढ़ लेते हैं स्लाइड और फिर वापस इस पे आ जाते हैं। प्रेस्क्राइब पर्सन, in this section prescribed person means फेडरल गवर्नमेंट जिसने टैक्स काटना है, ये उसको डिफाइन किया गया प्रेस्क्राइब पर्सन में, फेडरल गवर्नमेंट ने, अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, registered, unregistered, listed, unlisted company, and association constituted by or under law, a non-profit organization, a foreign contractor or consultant, a consortium or joint venture, an exporter or an export house for the purpose of subsection 2. So these are all are called prescribed person जिन्होंने टैक्स डिडक्ट करना है under section 153 for goods, services and contracts. An association person having turnover 50 million rupees or above or any preceding tax years, an individual having turnover of 50 million rupees or above any preceding tax year. ये लॉ में 2009 और उससे प्रीसीडिंग ईयर्स में ये एक एग्जाम्पशन अवेलेबल थी 153 में एच एंड आई में, जिसमें 50 मिलियन का थ्रेश होल्ड अवेलेबल था। लेकिन जब जे सेक्शन 2013 में आई थिंक ऐड हुआ था, अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990, तो उसमें उसको विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया गया है कि उसमें ये थ्रेश होल्ड जो है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये एच और आई अप्लाई नहीं होता। एनी पर्सन रजिस्टर्ड विद सेल टैक्स एक्ट is a withholding agent without applying any turnover 50 million threshold. A person deriving income from the business of construction and a sale of residential, commercial or other builders, or a person deriving income from a business of development and sale of residential, commercial plots, services including services of accountants, architects, dentists, doctors, engineers, interior decorators and lawyers otherwise than as an employee. Sale of goods include a sale of goods for cash or credit or on credit, whether under written contract or not. Manufacturer means person who is engaged in the production or manufacture of goods, which includes any process which an article singly or the combination with other articles, components is other converted into other distinct articles and changed or transferred or reshaped
that becomes capable being to use differently or process of assembling, mixing, cutting, preparation or any other manner. And turnover means the gross sales or gross receipt inclusive of sales tax, federal excise duty or any other discount shown on invoice or bills derived from sale of goods. तो ये सारे प्रेस्क्राइब्ड पर्सन की डेफिनेशंस में आते हैं और टर्नओवर की भी डेफिनेशन भी बता दी गई है कि जिसमें इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एनी ट्रेड डिस्काउंट होता है. Gross fees for the rendering of service for giving benefit including commission, gross receipt for the execution of contract and the company share of amount stated above, AOP which the company is a member. तो ये जो हमने बात की प्राइवेट पर्सन कौन है, मैं वापस उसी सेक्शन 153 के स्टार्ट में जाता हूं. जी, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन जो हमने अभी डिफाइन किए लॉ में मौजूद है. Every prescribed person for the sale of goods, for rendering services, execute one. Every exporter or an export house or establishment in Pakistan of a non-resident person, अगर उसकी PE है जो involved in printing, rendering services, stitching, dyeing, printing, they have to deduct tax. Prescribed person making payment full or part including payment by way of advance to a resident person for the sale of goods, except where payment is less than 75,000 in aggregate during the financial year, for the rendering or providing of services, except where payment is less than 30,000 rupees in aggregate during the financial year. तो ये एक छोटी सी कह लेंगे एग्जाम्पशन मौजूद है इसमें 153 में कि अगर साल में 75,000 का किसी का इन एग्रीगेट पूरे साल में उसका इनवॉइस है, बिल है, तो उसकी आप उससे अबव पे टैक्स काटना है, उस पे लेस पे नहीं काटना. और अगर सर्विसेज है तो वो 30,000. पहले ये लिमिट 25,000 और 10,000 थी. 25,000 थी सप्लाई और सेल की और 10,000 थी सर्विसेज, जो कि पिछले साल में काफी ज्यादा कहने के प्रपोजल्स के बाद इसको 75 और 30,000 किया गया. On the execution of contract including contract signed by sportsman but not including a contract sale of goods or rendering service, providing service shall at the time of making payment deduct tax amount payable including sales tax if any at the rate specified. Similarly, export की बात पहले होगी, exporter की. Establishment of Pakistan non-resident person for rendering or providing services. The tax deductible under clause A and C जो above हमने बात की of subsection 1 and subsection 2 of this section on the income of resident person shall be a minimum tax. In otherwise अभी ये सारी ही minimum tax में चली गई हैं सप्लाई के अलावा, जिसमें सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनमें मिनिमम टैक्स के तौर पे जो है वो आएंगे. इसमें पहले फाइनल टैक्स रिजीम में था, उसको पिछली साल में जो अमेंडमेंट आई है मिनिमम टैक्स कर दिया गया. सिमिलरली टैक्स deducted under clause A subsection 1 shall not be a minimum tax where payment received on sale of supply of goods. सिर्फ sale of supply of goods जो है वो minimum tax की definition में नहीं आएगा. By a company, अगर वो company है, being a manufacturer of such good, और वो manufacturer है company, उस सूरत में ये minimum tax में नहीं आएगा, वो adjustable होगा. Similarly, public company है, listed on a registered stock exchange, उसका भी minimum tax में नहीं आएगा, वो adjustable होगा. Tax deductible shall be minimum tax on transaction referred to in clause B of section 1, और वो minimum में आएगा. बाकी जितनी है stock exchange की company listed on shall tax deducted clause C of subsection 1 shall be adjustable if payment are received by a public company listed or a stock exchange in Pakistan on account of execution of contract. Tax deducted under clause C जो कि सर्विसेज का है, subsection 1 shall be of a sportsman shall be a minimum tax. Tax deducted subsection 1 by person payment electronic and media for advertisement shall be a minimum tax. तो अदरवाइज जो मैंने बात की पब्लिक कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज और मैन्युफैक्चरर है कंपनी, उनके मिनिमम नहीं होगा, एडजस्टेबल है. अदरवाइज सारी जो है वो मिनिमम टैक्स की सूरत में ट्रीट किए जाएंगे.
Commissioner may, on application made by the recipient of payment referred to in subsection 1, and after making such inquiry, Commissioner thinks fit, may allow in cases where tax deductible under subsection 1 is not a minimum by an order in writing, where person to make the payment without deduction of tax or deduction at a reduced rate. Commissioner के पास पावर है, अगर उसको अप्लाई करें किसी रीजन में कि बहुत बड़े लॉसेस हो रहे हैं या कोई और रीजन है, टैक्स बहुत ज्यादा डिडक्ट हो रहा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस और इनकम, तो वो उसके पास पावर है इन राइटिंग, वो आपको वो विदाउट डिडक्शन में एग्जेम्पशन भी दे सकता है, और आइदर इसका टैक्स जो है वो रिड्यूस रेट पे डिडक्ट होगा। तो कमीशन के पास पावर बहरहाल लॉ में दी हुई है। सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई, ये 153 का सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होगा, किस पे डिडक्शन नहीं होगी, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। A sale of goods where the sale is made by importer of the goods and tax under 148 in respect of such goods has been paid and the goods are sold in the same condition as they were when imported. अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है 148 और उसमें वो सेम कंडीशन में है विद कंडीशंस जो वहां पे दी हुई हैं कि उससे जीडी आपने लेनी है, उसका प्रूफ होना चाहिए, सीपीआर मौजूद होना चाहिए और एफिडेविट हो, उस सूरत में आपने उसका टैक्स डिडक्ट नहीं करना। Payment made to a trader, yarn, or taxpayer specified zero rated regime of sale tax provided under clause 45A of second schedule. A refund of any security अगर deposit है आप refund कर रहे हैं उस पर कोई जरूरत नहीं। A payment made to federal government को, provincial government को और local government contractor for construction of material supplied to a contractor by the said government or the authority, उनके टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। The purchase of an asset under a lease or lease back, मुदारबा लीजिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका टैक्स काटने की जरूरत नहीं। एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रिसीवेबल्स और इशू सुकुक बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल और द ओरिजिनेटर, उनका टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 153 सेक्शन बहुत ज्यादा है, आपको पता है लोकली रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट के लिए अप्लाई होता है, तो उसकी मैंने कंडीशन डिस्कस की हैं कि किन को अप्लाई होता है और उसके फिर एडजस्टमेंट कैसे होगी, कौन से मिनिमम टैक्स में जाएगा और कौन से वो एडजस्टेबल में। ये हम पहले बात कर चुके हैं टर्नओवर की भी। अब हम आ जाते हैं 165 स्टेटमेंट जो फाइल करनी है। एवरी पर्सन कलेक्टिंग टैक्स, जो भी हमने बात की 153 में है, 152 में है, या जो भी नए लॉ के मुताबिक 10th शेड्यूल डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम ए पेमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट और चैप्टर 12 ऑफ द 10th शेड्यूल शैल फर्निश कमीशन ऑफ बाई एनुअल। पहले ये मंथली फाइल की जाती थी, पिछले लॉ में इसको बाई एनुअल कर दिया गया है और वो साल में 2 दफा, उसमें सारे पर्टिकुलर डिटेल देनी है, CNIC नंबर, NTN एड्रेस, अमाउंट जिस पे टैक्स डिडक्ट करना है और वो अमाउंट ऑफ टैक्स दैट मस्ट बी डिक्लेयर। द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड टू द पर्सन फ्रॉम द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन ईच हाफ ईयर, और वो आपने डिडक्ट करके चालान या CPR हर महीने जमा होगा। रिटर्न जो फाइल करनी है उसकी स्टेटमेंट वो बाय एनुअल है। सिमिलरली सच अदर पर्टिकुलर में बी प्रिस्क्राइब्ड, एवरी पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल withholding statement even where no withholding tax is collected deducted during the period। null statement भी फाइल करना जरूरी है अगर उसमें कोई टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया, इवन दैट, अदरवाइज इस पे भी प्लेंटी मौजूद है। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, every prescribed person collecting under division of 2 of part or chapter 12th of the 10th schedule as per following schedule, namely shall furnish a statement in respect of half year ending 30th June on or before 31st day of July, in respect of the half year ending 31st December on or before 31st day of January। तो इन 2 डेट्स में उसने जो जून तक की क्लोजिंग है वो जुलाई 31st तक, और जो 31 दिसंबर तक की है वो 31 जनवरी तक आपने उसको फाइल करना है। एनी पर्सन हु हैविंग फर्निश्ड स्टेटमेंट डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग, अगर उसमें कोई रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, ओमिशन है, तो सेम एज रिटर्न 60 डेज में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद 182 सेक्शन डील करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी आदिल साहब मेरी तरफ देख रहे हैं, उन्होंने भी अपनी वो नेक्स्ट एमनेस्टी को डिस्कस करना है, हमारे जो पैकेज कंस्ट्रक्शन का है। बस सिंपली मैं कहूँगा कि अगर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे तो 100,000 की प्लेंटी है, और अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो 40,000। तो 1 साल की रिटर्न ना फाइल करने का अब जो
प्लेंटी है 182 में वो 1,40,000 की है। और सिमिलरली जो 165 की स्टेटमेंट फाइल नहीं होंगी तो वो 2,500 पर डे ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द डेट सब्जेक्ट टू मिनिमम प्लेंटी ऑफ 10,000। तो ये लॉ में दी हुई है, तो इससे बचने के लिए लॉ को ओबे करें और अपनी रिटर्न्स फाइल करें। The plenty specified under section 1 shall be applied in consistent manner and no plenty shall be payable unless the order in writing by commissioner, commissioner appeal or appellate appeal। जब तक उनसे after opportunity of being heard तो आपने उसको पे नहीं करना। अब ATL list 100BA, I think it's my last or second last slide। A nominal tax placement on active taxpayer list after due date of filing return has been imposed as under for company 20,000। अगर रिटर्न फाइल नहीं हुई, अगर लेट फाइल की है तो 20,000 पे करेंगे तो ATL लिस्ट में आएगा। AOP ने 10,000, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल ने 3,000 और सैलरीड इंडिविजुअल ने 1,000। तो ये 100BA नया सेक्शन ऐड हुआ है। कुछ सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, जो कि अभी टाइम खत्म हो गया है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, अभी आदिल साहब ने भी डिस्कशन करनी है। तो ये हम नेक्स्ट सेशन करेंगे जिसमें मिनिमम टैक्स 113 सेक्शन, 147 सेक्शन, 100C टैक्स क्रेडिट, 64C टैक्स क्रेडिट फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, 99C स्पेशल प्रोसीजर फॉर पर्सन रिकॉर्ड कीपिंग, 108B ट्रांजैक्शन अंडर डीलरशिप अरेंजमेंट्स, 120B रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसीडिंग, 153B relative payments, 171 refund of bonds, and 192 concealment of offshore assets, 195 non-compliance of notice, and 195B prosecution enabling offshore tax evasion, or 216A prosecution against authority and persons, 222A fees and charges, 227D automated, and 236W जो कि abolish हो गया है। ये डिस्कशन हम नेक्स्ट किसी एक और सेशन रखेंगे जिसमें हम इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ जस्ट अ मिनट, ये जरा इसको देखिएगा। इसको ये मैं हटाना चाह रहा हूँ, स्लाइड्स, ताकि मैं इसको क्लोज करूं सेशन को। जी थैंक यू। स्लाइड्स बंद कर, इसको ऑन कर। आई थिंक मुझे ये बंद करना पड़ेगा। ये वो आप ठीक कर रहे थे ना, डोंट सेव कर, ये आ जाएगा अभी। इस पे ऑन कर, इसको कर जी। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट सेक्शंस। और कुछ सेक्शन जैसे मैंने अभी बात की कि मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट हैं, जो कि नेक्स्ट किसी में टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट हम एक सेशन रख लेंगे। और इसके अलावा आपके जो भी कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी इन्होंने आदिल साहब ने डिस्कस करना है जी। अच्छा अब एक मिनट, अगर आप शेयरिंग अगर आप क्लोज करें जी। जी आसिम साहब आप। जी सर। सर अब हम आदिल साहब की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल क्वेश्चन आंसर एक ही दफा, क्वेश्चन आंसर एक साथ ले लेंगे। ठीक हो। Dear participants, as recently an ordinance has been approved for the construction industry that will give special tax breaks to builders and land developers as business suffers due to spread of novel coronavirus in Pakistan and across the world. On this subject, we have today with us Mr. Adil Amin, who is the CEO
of Shehzad Adil and Company to deliver a brief presentation on this very important subject. It's over to Mr. Adil Amin. Adil sir? You can listen to me, sir. IT team is requested to kindly turn off the mic and speakers of Malik Saab computer. Thank you so much, Asim Saab, Executive Director Saab, Shehzad Ahmed Malik Saab, Atar Salim Saab, for inviting me for this very important changes in the law. मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही थोड़े से टाइम में 10 मिनट में और ये जो मेजर चेंजेस हैं इनके बारे में बता सकूं। हमें इस कानून को देखते वक्त जैसे ही हमें पहला ड्राफ्ट मिला तो हम थोड़े से परेशान थे कि किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं, कि इतना बड़ा चेंज लाने के बावजूद इम्पैक्ट इकोनॉमी में शायद कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जब हमने उस कानून को देखा जो हमें ऑर्डिनेंस के जरिए मिला तो उससे ये एहसास हुआ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया है और इसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया। जो मुख्तलिफ एरियाज से उनको इनपुट्स आई थी वो तमाम की तमाम ही ऑलमोस्ट उन्होंने कोशिश करके इसमें अडॉप्ट की हैं और काफ़ी आसानियाँ डेवलप की हैं। मैं इसका जब तक हम डिटेल्स में जाएंगे और आपको डिटेल चेंजेस भी शायद जल्दी मैं इसमें सारी 10 मिनट में कवर कर लूँगा। मेनली एक हमेशा से मिसिंग एमनेस्टीज के अंदर ये किसी भी ऐसा लॉ आता था तो FBR का एक ऐसा हाथ रहता था कि जिसकी वजह से वो एट द एंड ऑफ डे एक फेलियर की तरफ चली जाती थी। अब इस पूरे साइकिल को इस लॉ के अंदर उन्होंने कवर करने की कोशिश की जिसमें इन्वेस्टर से लेके परचेजर तक को कवर दिया गया। यानी जो इन्वेस्टर है वो जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको हर किस्म का कवर दिया गया है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट उसकी इन्वेस्टमेंट का, उसकी जितनी भी मालियाती वहाँ पे पेचीदियाँ थी उसको आसान कर दिया गया, FTR के अंदर ले जाया गया। ना सिर्फ यहाँ तक, इससे आगे बढ़ के गवर्नमेंट ने ये भी किया कि परचेजर को भी सोर्स ऑफ इनकम से एग्जम्प्ट कर दिया गया। इस पूरे साइकिल को एक दफ़ा चलाने की पूरी कोशिश की गई है कि कहीं पे भी किसी को भी मुश्किल ना पेश आए कि वो जब स्टार्ट लेता है या अपनी सेलिंग करता है। प्रॉब्लम यही आती है कि एक बहुत बड़े, क्योंकि हमारा मुल्क आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत हाई टैक्स रेट पे है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इनकम जो है वो बंदों की टैक्सों की नज़र हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ना हो वहाँ पे ये तमाम के तमाम जो टैक्सेस हैं वो लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने की वजह से ब्लैक सोर्स बनते हैं और हर 10 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद, और इस दफ़ा हमने देखा कि 3 साल, 1-2 सालों के अंदर कोई तीसरी एमनेस्टी आ रही है। ये एमनेस्टीज इसी वजह से आती है कि टैक्स रेट्स हाई होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जब हुकूमत ये देख रही थी कि वो तमाम के तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रास्ता मिले, उनको इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसको आप इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया कंस्ट्रक्शन को, उसके अंदर जब आए तो ना ही उनसे सोर्स का पूछा जाए, ना ही उनसे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आ रही है इसका पूछा जाए, ना ही उनके टैक्स के निज़ाम को कोई बहुत मुश्किल बनाया जाए, FTR के अंदर ले जाए, और ना ही टैक्स की बाकी पेचीदगियाँ जिसको हम विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं या सर्विसेज के सेल्स टैक्स हैं उसके अंदर भी ना जाए, और ना ही कोई कैलकुलेशंस की मेथोडोलॉजी में ले जाया जाए कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी है और फिर एक बहुत ही मुश्किल सी रिटर्न जमा करानी है, फिर तब टैक्स बनना है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक सादा सा तरीक़ाकार इख्तियार कर दिया। फिर उससे बढ़कर उसमें टर्नओवर टैक्स को भी सिरे से ख़त्म कर दिया गया, सर्विसेज के विदहोल्डिंग टैक्सेस को भी ख़त्म कर दिया गया। फिर ये नहीं कि पूरी कंपनी की आप टैक्सेशन करेंगे, आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना है और उसी एक प्रोजेक्ट की टैक्सेशन ही फाइनल में चली जाएगी। उसको थोड़ा सा आगे लेके चले तो यही फ्लैट्स या कोई प्लॉट्स, कोई बिल्डर या कोई लैंड डेवलपर जब बनाता है तो जिसको बेचने जाना है उसके पास भी सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी नहीं है। उसकी वेल्थ टैक्स पे चाहे थोड़े से पैसे आ रहे थे लेकिन वो अपने लिए प्लॉट खरीदता है तो उसे वो कंसीलमेंट्स का नहीं होगा, उसके लिए भी आज़ादी है कि वो बड़े मज़े से अपने जिस किस्म की भी इनकम है उससे वो ख़रीद ले। अच्छा, वो इनकम चंद एक उन्होंने मना कर दी कि क्रिमिनल प्रोसीड्स ना हो, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनकी इनकम ना हो,
यहाँ तक छोटी छोटी सी चीजें उसमें चेंज लाई गई हैं। तो हम अब चलते हैं अपने इस हाइलाइट्स की तरफ। तो हम आपको समरी में एप्लीकेबिलिटी का बताएंगे कि ये ऑर्डिनेंस किस किस पे एप्लीकेबल है, एलिजिबिलिटी का बताएंगे कौन से बंदे इसमें एलिजिबल हैं, कौन से नॉन एलिजिबल हैं, इम्यूनिटीज बताएंगे स्कीम के अंदर, और मुख्तलिफ कंडीशंस बताएंगे, टैक्स रेट्स ऑफ डिफरेंट सिटीज बताएंगे। ये प्रेजेंटेशन मैंने सज्जाद साहब के साथ मिलकर तैयार की थी और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो मेरे साथ बैठे और उन्होंने आपके साथ शायद कुछ ये प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ चैनल्स पे शेयर भी की होगी। इसी की डिटेल्स मैं आपसे आगे शेयर कर रहा हूँ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनेंस कहाँ पे है? अच्छा, ये बात बहुत सी डिस्कस की जा रही है मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ये बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है जो सारे के सारे 31 दिसंबर 2020 से पहले आए हैं, उसके बाद की बात नहीं हो रही। अच्छा, और उससे पहले जितनी कंपनियां एग्जिस्टिंग वो भी इसका पार्ट बन सकती हैं। उसको सिर्फ आपने एफबीआर के साथ रजिस्टर करवाना है, सादा सा तरीका है। इसमें दो चीज़ों को लिया गया है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को, क्या आप लैंड लेते हैं, लैंड के ऊपर फ्लैट्स बनाते हैं, फ्लैट्स को बेचते हैं, एक तरीकाकार है। उसकी टैक्सेशन जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने कर दी है। उसका तरीकाकार इवैल्यूएशन का भी निहायत आसान रखा गया है। उसको उन्होंने नेस्ट पार्क को इवैल्यूएटर बना दिया है। फिर उसके जो चेंजेस हैं, अगर दरमियान में कहीं पहुंच जाती है और थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद वो ये चाहते हैं कि आप ओनर्स के पास इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है, तो और ओनर्स भी और इन्वेस्टर्स भी डाल सकते हैं एफबीआर की अप्रूवल के साथ। और शर्त उसकी सिर्फ इतनी है कि 50% से ज्यादा उस पर काम इन्वेस्टमेंट हो चुकी हो, तब बोर्ड जो है वो उसको ऑथराइज कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। फिर इसी तरह लैंड डेवलपर्स के बारे में भी बड़ा सीधा सीधा तरीका बताया गया है। अच्छा, ये जो भी प्रोजेक्ट है इन सब को 31 दिसंबर से पहले रजिस्टर होना है, अप्रूव होना है। अच्छा, उसके अगर कागज जमा हो गए हैं और सीडीए और हम मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज को देखते हैं, वो साल ले लेते हैं, 1.5 साल ले लेते हैं। तो इस ऑर्डिनेंस के अंदर बड़ी वजाहत से बताया गया है कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब हो गई है तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा कि ये 31 दिसंबर से पहले आपने सिर्फ सबमिशन करवानी है। अगर सबमिशन करवा दी तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ दिस। इस ऑर्डिनेंस के तहत इसको इम्यूनिटीज मिल जाएंगी। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उनको भी इसका पार्ट बनाया गया है। एलिजिबल पर्सन कौन से हैं? जब हमारे पास ड्राफ्ट आया था तो हमने देखा था कि इंडिविजुअल्स उसमें मिसिंग थे, लेकिन इसमें इंडिविजुअल्स को भी डाल दिया गया। सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी आप कोई भी इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद, यानी आज के बाद 31 दिसंबर के दरमियान बनाएंगे, वो तमाम की तमाम कंपनियां इसमें कवर होती हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस इन दिस फील्ड, जो मौजूद हैं इस फील्ड के अंदर, तमाम बिजनेस पहले काम कर रहे हैं, वो भी एफबीआर को अप्लाई कर सकते हैं और इसका पार्ट बन सकते हैं। नॉन एलिजिबिलिटी आप हमेशा हर कानून के अंदर देखते रहे हैं, वही बात इसमें भी लिखी हुई है कि होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस और हिज बेनामीदार। अब बेनामी का भी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत तेजी से हर बंदा सोर्स ऑफ इनकम और बेनामी की बात कर रहा होता है, तो उसको इसमें नॉन एलिजिबल करार दिया गया है। फिर इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीड्स कोई आ रही हैं, वो भी इसका वो कहीं पे भी प्रूव हो जाता है एफआईए के अंदर कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की सारी अगर क्रिमिनल प्रोसीड्स थी, ये चीज पहले एस्टेब्लिश नहीं होती, ये एस्टेब्लिश होती है बाद में। आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, एफआईए की कई इन्वेस्टिगेशंस आ गई, नैब की इन्वेस्टिगेशंस आ गई, तो ये इस एलिजिबिलिटीज में से प्रोजेक्ट निकल जाएगा। वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फिर कंसीलमेंट के पार्ट में चली जाएंगी। फिर इसी तरीके से पब्लिक लिस्टेड कंपनी या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और वो इनकम जो है उसकी एग्जाम्प्ट है अगर, तो वो भी इसके अंदर पार्ट नहीं बनते। इम्यूनिटीज इस स्कीम में किन किन को है, क्या क्या इम्यूनिटीज डेवलप हैं? आप देखें कि एग्जाम्पशन फ्रॉम सीवीटी यहाँ पे दे दी गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ। अब यहाँ पे जब इंडस्ट्री की बात की गई थी तो हर कोई ये सवाल कर रहा था कि ये इंडस्ट्री कैसे बनेगी, तो इंडस्ट्री ने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डेफिनेशंस में जाना था। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात की गई तो टैक्स के लॉ के अंदर वहाँ पे जहाँ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात की गई थी वहाँ पे इस चीज को ऐड कर दिया गया है ताकि इसको एज ए इंडस्ट्री देखा जा सके। फिक्स टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स, बड़ी सादी सी बात की है, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस और उन चीज़ों की बात उस तरह से नहीं हो रही है कि एफटीआर की पार्ट हो रही है, लेकिन बस एक चीज़ को बताया गया है कि जब बुक्स में आप ऐड करेंगे तो आपकी जो इनकम है, जो उससे गेन आ रहा है प्रॉफिट का, वो आपका जो टैक्स पे किया है उससे 10 गुना से ज्यादा ना हो। अब 10 गुना से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपकी नॉर्मल इनकम फर्स्ट शेड्यूल में अदर इनकम में आ जाएगा। फिर एग्जाम्पशन फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात हो, एग्जाम्पशन फ्रॉम फर्स्ट परचेज बिफोर 30 सितंबर। ये एग्जाम्पशन की हमारी बात हो रही है कि
जो एलिजिबल पर्सन है शैल बी अलाउड इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, वो अपनी बुक्स में ऐड कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था जैसे कि इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स अप्रूव बाय, अच्छा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको ऐड कर दी गई है। मुख्तलिफ आपके पास लोग काम कर रहे होंगे या आप कंसल्टेंसी में लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अपना प्रोजेक्ट जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके हवाले कर दें। हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स आ रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत एपिटाइट है और वो ये चाहती है कि बहुत से लोग उन्हें बना के प्रोजेक्ट दें और वो एग्जीक्यूट दें। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो फॉरेन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करती है, वो उसका पार्ट बन जाते हैं। तो वहाँ पे जो टैक्स यहाँ पे जो मिनिमम 10 स्क्वायर यार्ड पे आप 10 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से लेके आप 230 रुपये पर स्क्वायर फीट तक देखेंगे आपको नजर आएगा, तो उसमें भी 90% आपका टैक्स एग्जम्पशन में चला जाता है। बाकी तमाम जितनी भी उसकी कंडीशंस हैं वो वैसे ही रहेगी। और सबसे अहम बात जो एक इशू नजर आता है 113 की और टर्नओवर टैक्स की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पे एग्जाम्पशन है, आपको नहीं देना। आपको एडवांस टैक्स जरूर पे करना है। आपका जो भी आप एक कवर्ड एरिया बना रहे हैं, लेट्स सपोज 1000 स्क्वायर फीट का आप एक कवर्ड एरिया बना रहे हैं, तो उस 1000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया पे जो टैक्स का एक रेट लगा हुआ है पर स्क्वायर फीट, वो आप कैलकुलेट करेंगे और 4 महीनों 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको जमा करवा देंगे एज एडवांस टैक्स, जैसे क्वार्टर्स में जाता था। सिमिलर वही सिचुएशन है और इस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट करना है 2.5 साल के अंदर। तो बेसिकली इस सारे के पीछे थीम यही है कि आपको एक एग्जम्पशंस की एक लंबी लाइन आसानियां दी जा रही हैं और विदहोल्डिंग टैक्स की इसी तरीके से आपको एग्जम्पशन है, सिवाय स्टील और जो सीमेंट सेक्टर था उसको निकाल के बाकी तमाम पे आपको विदहोल्डिंग की एग्जम्पशन है, आपको किसी किस्म की विदहोल्डिंग भी नहीं करनी। अच्छा, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं रजिस्टर्ड जो पहले से हैं और जो बाद से हैं, उनके बारे में तफसील इसी ऑर्डिनेंस के है कि नया प्रोजेक्ट जो है वो 30/9/2022 तक कंप्लीट होना जरूरी है। एंड इनकम्प्लीट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट 30/9/22 को इसकी भी बात उसी के साथ की गई है। फिर इस तरह टैक्स डिडक्शन अंडर 236 के एडवांस टैक्स ऑन परचेज, यहाँ भी ये भी एडजस्टेबल होगा। आप जो एडवांस परचेजेस का टैक्स पे कर रहे हैं उसकी एडजस्टमेंट आपको साथ मिल रही है। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम सी बात है जिसको समझने की ज़रूरत है कि रिफंड्स इसमें नहीं है। जब आप FTR के अंदर जा रहे हैं तो जहाँ भी जो टैक्स मुकम्मल हो गया है वो आपकी फाइनल टैक्सेशन में चला जाएगा, तो इस वजह से रिफंड्स किसी किस्म के नहीं मिलेंगे। कंडीशंस हमारे पास एग्जम्पशन फ्रॉम सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या है? इफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय अ बिल्डर और डेवलपर बीइंग एन इंडिविजुअल। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं सिर्फ समझने के लिए। एक, जो पैसे हैं जैसे ही वो कंपनी बनाएंगे तो वो पैसे 31/12/2020 से उसके अकाउंट उस कंपनी के अकाउंट में आने हैं। अच्छा, ये आने अकाउंट पे ही चेक से हैं, ये कैश जमा नहीं होना, ये इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, वो लैंड जिस पे वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले उसके नाम पे होनी चाहिए। तो ये 2 ही चीज़ें हैं समझने के लिए कि इन्वेस्टमेंट के तरीक़ाकार को कैसे रखेंगे, तो वो उसके बारे में हुकूमत पूछताछ नहीं करेगी। उसका तरीका यही है कि आप अपने अकाउंट में इन्वेस्टमेंट के पैसे डालेंगे और एक अकाउंट पे ही चेक लिख के उस नई कंपनी के अंदर, जो कंपनी आपकी अभी इस्टेब्लिश होगी इस काम के लिए, उसमें पैसे डाल देंगे। तो इसकी एग्जम्पशन है, इसके सोर्स के मुताबिक नहीं पूछा जाएगा। और फिर इस तरीके से आप ये देख सकते हैं द इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय पर्सन हु इन कंपनी कर रहे हैं, तब भी उसका भी वही है, कंपनी के अंदर हो, AOP के अंदर हो, इंडिविजुअल के अंदर हो, हर सूरत में आपने पैसे अपने अकाउंट में डाल के उस कंपनी के अंदर डालने हैं। और अगर ज़मीन है तो वो ज़मीन पहले से आपके नाम पे होनी चाहिए, अब वो खरीदेंगे नहीं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप पैसे डाल के पैसों से ज़मीन खरीद लेंगे तो वो इसमें कवर हो जाएगी। अच्छा, एग्जाम्पशन फ्रॉम सोर्स ऑफ इनकम, द फर्स्ट परचेजर ऑफ, अब ये आपको जो मैंने शुरू में बात बताई थी कि जो पहला परचेजर है वो उसकी भी एग्जाम्पशन इसमें दी गई है। यानी इस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए दोनों चीज़ों को एमनेस्टी दे दी गई है। जो इन्वेस्ट कर रहा है, बना रहा है, उसे भी एग्जाम्पशन है, जो खरीद रहा है उसको भी एग्जाम्पशन है। 2022 तक वो खरीदेगा तो उसको ये एग्जाम्पशन साथ साथ मिल जाएगी। फिर कैपिटल गेन्स की भी एग्जाम्पशन यहाँ पे मौजूद है, ये मुख्तलिफ किस्म की। ये 500 स्क्वायर यार्ड की 4000 स्क्वायर फीट के ये आपको एग्जाम्पशन जो है लैंड के अंदर मौजूद है। एग्जाम्पशन अंडर दिस क्लास हैज नॉट प्रीवियसली बीन फॉर द इंडिविजुअल और स्पाउस और डिपेंडेंट्स। आज तक ये स्पाउस और डिपेंडेंट्स की बात नहीं हुई इस कानून में, ये स्पाउस और डिपेंडेंट्स की भी बात हुई कि उन्हें भी ये एग्जाम्पशन उसी तरीके से हासिल होगी। मैंने प्रॉफिट एंड गेन्स की आपसे बात की थी, कैन इनकॉर्पोरेट इट्स प्रॉफिट। ये जो जितने भी प्रॉफिट्स हैं ये सारे उनकी बुक्स में ऐड किए जा सकते हैं, शर्त सिर्फ इतनी है कि वो टैक्स जो पे किया उससे 10 गुना से ज़्यादा ना हो, एल्स अदरवाइज वो आपकी नॉर्मल इनकम में अदर सोर्सेज में ट्रीट होगी।
तो इस चीज़ का सिर्फ ख्याल रखना है, क्योंकि अब आप अगर देखते हैं कि इसको एक रैशनलाइज करने की भी कोशिश की गई है कि आप ऐसा ना हो कि इसके अंदर बहुत बड़ी लोग इन्वेस्टमेंट्स करके और फिर बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा के और फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम्पशन को फिर अवेल करके फिर ब्लैक मनी की तरफ चले जाएं। तो उसको इंडस्ट्री बनाने के लिए, न्यूट्रलाइज और नॉर्मलाइज रखने के लिए भी यहाँ पे इस चीज़ को डाला गया है कि अगर कोई इससे ज़्यादा चला जाएगा, टैक्स जितना पे किया है उससे 10 गुना ज़्यादा, जैसे हम देखते थे कि 30% रेट है हमारा, तो हम यही समझते थे कि 100 रुपये पे 30 रुपये टैक्स था, तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करते थे। तो उसी को उन्होंने रीवैल्यू करके 10 रुपीज से 10 टाइम्स तक लेके गए हैं। फिर इसी तरीके से उसका जो प्रॉफिट जब आएगा तो वो प्रॉफिट भी अगर एओपी में डिवाइड हो रहा है तो वहां भी टैक्स एग्जम्पशन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो एओपी में जाएगा तो फिर टैक्स हो जाएगा। तो ये सवाल भी यहाँ खत्म कर दिया गया और ऑर्डिनेंस के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया गया कि वो गेन और प्रॉफिट अकॉर्डिंगली एओपीज में या पार्टनरशिप्स में आगे डिवाइड हो सकता है। फिर एक और चीज थी कि डिविडेंड्स अगर यहाँ पे इनकम हो जाती है तो फिर पैसे कंपनीज के अंदर निकालेंगे कैसे, तो इस चीज को भी एड्रेस किया गया इस ऑर्डिनेंस के अंदर और ये बड़ी वजह से बता दिया गया कि जो डिविडेंड्स हैं वो भी एग्जाम्प्ट होंगे। सो आप सारे के सारे डिविडेंड उसमें डाल सकते हैं और डिविडेंड एग्जाम्पशन में जा रहा है। तो तीनों सेक्टर्स को कि ऐसा ना हो कि कॉर्पोरेट सेक्टर बैठ जाए, तो उसकी भी जो सर्वाइवल को साथ देखा गया, क्योंकि यहाँ पे जब बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेटिकली एओपीज में जानी थी या इंडिविजुअल्स में जानी थी तो फिर ये खौफ बहुत बड़ा था कि बहुत हैवी जो है या बहुत बड़ी जो है वो ये पार्टनरशिप्स बन जाएगी बिलियंस ऑफ रुपीज में। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने कंपनीज के अंदर वो सारी की सारी फैसिलिटीज भी दे दी कि उसके डिविडेंड्स में वो सारा का सारा चला जाए। विदहोल्डिंग टैक्स की मैंने आपसे बात की थी कि स्टील के अंदर और सीमेंट के अलावा बाकी तमाम विदहोल्डिंग टैक्स की एग्जाम्पशन है। फिर इसी तरीके से आपके जो सर्विसेज पे विदहोल्डिंग थी उसको भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया गया। चेंज इन ओनरशिप की बात है कि दरमियान में कहीं पहुंचते हैं और पता लगता है कि ये जो चेंज इन ओनरशिप जो है अगर दरमियान में प्रोजेक्ट के पहुंचते हैं और उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो बोर्ड अप्रूव करेगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि नो चेंज इन ओनरशिप शैल बी अलाउड बाय द बोर्ड इन केस द एक्सपेंसेस जो है वो 50% से कम है। अगर 50% से कम प्रोजेक्ट की कॉस्ट खर्च हुई है उस वक्त तक तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो वो उसको कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बोर्ड उसको अलाउ करता है। और ये ओनरशिप के जो एक्सपेंसेस हैं ये सर्टिफाई करेंगे ICAP के मेंबर, वो QCR रेटेड हैं, वो भी स्पेसिफिकली QCR के भी जो लोग हैं उनमें से भी स्पेसिफाई किया गया है। चंद ही कंपनीज होंगी जो बोर्ड को अप्लाई करेंगी और वो उनको ऑथराइज करेंगे और एक्सपेक्टेडली शायद वो बिग 4 ही हो। अब क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन एकदम खड़ा होता है कि ICM मैंने क्यों नहीं इसको फॉलो अप दिया, क्योंकि गवर्नमेंट देख रही थी इसको बहुत हाई लेवल पे और हमारा QCR के कंपनी कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि हम उन्हें बल्कि ना होने के बराबर हैं, तो इसमें हमारी कोई ऐसी पार्टिसिपेशन हो भी नहीं सकती थी। तो इसीलिए सरकार ने इसको बहुत हाई लेवल पे इवेल्युएट करने के लिए QCR रेटेड ICAP की कंपनीज और वो ICAP की कंपनीज भी बोर्ड सर्टिफाई करेगा, उसको नोटिफाई करेगा कि वही इसकी ओनरशिप के ट्रांसफर के एक्सपेंसेस को सर्टिफाई करेंगे। अच्छा, फिर इसी तरह एडिशनल शेयर होल्डर्स अगर डालने हैं तो वो 31 दिसंबर 2020 से पहले डाल सकते हैं और वो बोर्ड उसको अलाउ कर देगा। और यहाँ पे एट द एंड ऑफ डे उन्होंने बड़ा सादी सी चीज नेस्पाक को अलाउ कर दिया है, उसको या अप्रूविंग अथॉरिटी है, इसमें इवेल्युएटर्स हैं जो स्टेट बैंक में लिस्टेड हैं, उनकी बात की जा रही है कि वो लोग या नेस्पाक के पास आप जाएंगे तो अगर वो एरिया होगा लैंड का तो स्क्वायर यार्ड में उसको कैलकुलेट कर देंगे, और अगर कवर्ड एरिया होगा तो स्क्वायर फीट में कर देंगे, सेलेबल एरिया होगा तो स्क्वायर फीट में कर देंगे। तो ये इतनी ही इवेल्युएशन उस सारे प्लान की नेस्पाक ने या अप्रूविंग अथॉरिटी ने करनी है, और वो ये भी बताएंगे कि ये कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है। और फिर आगे हम जाते हैं कि 11th शेड्यूल में इसका स्कोप ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स का बड़ा बताया गया है वजह से कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कंसिडर होगी, ये कोई नहीं होगी और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होगी। अगर एक पार्टनरशिप है वो 10 प्रोजेक्ट लगा रही है तो हर 10 प्रोजेक्ट का सेपरेटली टैक्स होगा, सेपरेटली वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके 10 प्रोजेक्ट चल रहे थे और 9 कंप्लीट हो गए और एक जो है वो अनकम्प्लीट रह गया इस प्रोजेक्ट में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि एक बहुत बड़ी कंपनी या एक बनाते हैं मल्टी प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं 40, 50, 60, तो किसी एक प्रोजेक्ट की वजह से वो इस स्कीम में से निकलेगा नहीं। सो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप 2.5 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके 10 थे, 9 आपने कंप्लीट किए, एक नहीं हुआ, एक नॉर्मल इनकम में चला जाएगा, 9 जो है वो आपके FTR के अंदर टैक्स में चले जाएंगे।
फिर इस तरह एडवांस टैक्स का मैंने आपको बताया था 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे अपना कवर्ड एरिया, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। निहायत सादा सा तरीकाकार बताया गया है। जब नेस्पाक वाले इवेल्युएट करेंगे तो कमर्शियल बिल्डिंग होगी तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में होगी तो 250 रुपये पर स्क्वायर फिट होगा, और अगर रेजिडेंशियल होगी तो 80 रुपये होगा, और इसी तरह से ये सादा सा एक्ट है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को भी कवर किया गया है, वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, कि अगर इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट होती है किसी जगह पर, तो उसको सिर्फ 10 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में ले जाया गया, 20 रुपये से 10 रुपये। सो ये एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट इंडस्ट्री के लिए भी ऐड किया गया है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जहाँ मशीनरी इंपॉर्टेंट होती है वहाँ बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पार्ट बनती है, तो वहाँ पे टैक्सेशन को बहुत मिनिमम किया गया है, वो 20 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, ताकि वो भी डेवलप हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको 5-10 मिनट में ये सारा का सारा बताता। कुछ सवाल थे जिनमें थे कि इंडिविजुअल जो हैं वो इसका पार्ट बन सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बन सकते हैं तमाम इंडिविजुअल, लेकिन बात यह है इसमें इम्पोर्टेंट कि उन्होंने वो बेचना है। यहाँ पे 2 स्टेप्स हो रहे हैं, उसको कंप्लीट करके ये इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, उसका बिजनेस होना है। गवर्नमेंट इसका साइकिल चलाना चाहती है। ये तो फिर यूँ हो जाएगा कि अगर इंडिविजुअल सारे लोग जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो अपना एक बनाए और उसके अंदर अपनी वेल्थ में दिखाता रहे, यूँ तो नहीं होगा। तो आपने बना के बेचना जरूर है। फिर इसी तरह से हाउ टू रजिस्टर अ प्रोजेक्ट विद FBR, ये भी फौरन ही आ जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये पोर्टल वगैरह के अंदर चेंजेस आ जाएंगी, तो वो जैसे ही आती हैं तो फिर इंशाल्लाह वो FBR वाले भी शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच मलिक साहब, आसिम साहब और अतर साहब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। Thank you very much, Adil sir. From this, we'll quickly move on to the Q&A section. First question is from Mr. Zahid. Zahid साहब, आदिल साहब जानना चाह रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराने का क्या तरीकेकार होगा? मैंने अभी ये बताया है कि ये FBR के पोर्टल में भी चेंजेस हो रही हैं, वो जैसे ही आएंगी तो ये रजिस्ट्रेशन साथ हो जाएगी। Our next question is for Mr. Shehzad Ahmed Malik. जी IT team is requested to kindly turn off the mic and speaker of Adil Saab's laptop. ठीक है। इसका स्पीकर ऑन कर, जी आसिम साहब। जी सर, so the question is from Mr. Azim Siddiqui. आपको सलाम भी कह रहे हैं और साथ में पूछ रहे हैं कि प्लीज क्लैरिफाई whether a resident person who has filed wealth statement under section 116 and has already declared his foreign assets, would he still be required to file a separate statement under section 116A for his foreign assets? नहीं, जब उन्होंने अपने एसेट्स वहां पे डिक्लेयर कर दी है ना और रिटर्न नॉर्मल फाइल हुई है, तो फिर उनको जरूरत नहीं है 116A की। 116A एक्चुअली उनके लिए है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे एज ए नॉन रेजिडेंट, तो उस सूरत में 116 में अपने एक्सपेंडिचर फाइल कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल कर दी है, उसमें एसेट भी डिक्लेयर है, एक्सपेंडिचर्स भी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, बोथ लोकल एंड नॉन रेजिडेंट, देन देयर इज नो नीड to file again 116A. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही से है सर। इट इज फ्रॉम मिस्टर मोहम्मद आरिफ। इज देयर एनी फिक्स रेट फॉर स्मॉल बिजनेसेस? हाँ, मैंने इसका जवाब दे दिया है। अभी इस पे मजीद काम नहीं हुआ, लेकिन जो ऑलरेडी फिक्स बिजनेसेस के लिए दिया गया था कि उनके स्क्वायर फीटेज एरिया के हिसाब से और कि उनके शॉप एरिया कितना होगा, अभी वही है। उसको मजीद आई थिंक सो कि जो नेक्स्ट बजट आएगा उसमें शायद नई चेंजिंग आए उसमें। जी सर, सर शोएब साहब इज आस्किंग व्हाट इज द रूल और लॉ फॉर द पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट
and having no NTN? हाँ, मैंने इसका जवाब दे दिया उधर, लेकिन इसमें यही है कि लॉ में नॉन रेजिडेंट को रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसने ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जाना है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है पाकिस्तान में, या वो कोई परचेज एसेट करना चाहता है, तो उसे ATL में अगर जाने के लिए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उस सूरत में जरूरी है कि वो रिटर्न फाइल करे ताकि ATL लिस्ट में आ जाए, अदरवाइज दे हैव टू पे डबल टैक्स एज पर नॉर्मल रेट। जी। Next question is from Mr. Sheikh Haris. He wants to, sir, seek your advice on agricultural income mechanism, हाँ जी, whether taxable or not. जी जी, एग्रीकल्चर इनकम एक्चुअली 18th अमेंडमेंट के बाद चेंजिंग आई है, जो कि वो प्रोविंशियल टैक्स के स्कोप में चला गया है, और उसमें जिन जिन प्रोविंसेस ने टैक्स लगाया है, जैसे पंजाब का पहले 10% टैक्स रेट था स्टेट, तो उस सूरत में वो DC को ही वो पे करते हैं लोकली, और अभी उसका रेट कम हो गया है, तो वो अगर डिडक्ट हुआ हो तो उतनी वर्क बैक करके आपको, मैंने ये वहां पे डिस्कस भी किया है, उतनी आपको सोर्सेज में दिखा सकते हैं अपना अमाउंट ऑफ सोर्सेज। अगर वो वहां पे टैक्स पे नहीं किया तो उस सूरत में वो टोटल अमाउंट, अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आपने सोर्सेज में दिखा दिया वेल्थ स्टेटमेंट में, तो दैट अमाउंट विल बी होली एडेड टू द इनकम, और वो जो स्लैब है उसके मुताबिक टैक्स लगेगा, जो नॉर्मल स्लैब है FBR का। इसलिए बेहतर ये है कि प्रोविंशियल रेट कम है, और आप अगर कोई दिखाना चाहते हैं इनकम एग्रीकल्चर, तो आप वहीं टैक्स पे कर दें, जो कि अभी रेट 10 से भी कम कर दिया गया, ऑलमोस्ट 8 और 7% आई थिंक अभी जो नया रेट है वो पे कर। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से जैसे KPK में प्रोविंशियल टैक्स है ही नहीं, वहाँ पे इस नो इशू, लेकिन SRB में है, BRA में है, वहाँ पे आपको जो रेट अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसके मुताबिक शेड्यूल पे देना पड़ेगा। जी। Sir, the next question is from Mr. Tausif. What will be the treatment of foreign exchange received through banking channel in Pakistan in US dollar, not converted to Pakistani rupees? देखिए, इसमें 111 सेक्शन में मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया है कि लॉ तो ये कहता है कि जी वो थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए, और बैंक वो एनकैशमेंट का सर्टिफिकेट देगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट है उस सूरत में ठीक है, वो एक्सेप्टेबल। अगर पाकिस्तान में वो उसको यूज करना चाहता है, बाहर से पैसा आया, तो उसके लिए कैश पाक रुपी में होना चाहिए अप टू 5 मिलियन, और वो सर्टिफिकेट बैंक देगा, उस एक्सेप्टेबल होगा। ये नहीं है कि डॉलर ले और मनी चेंजर से चेंज करा ले, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी। Okay, sir. The next question is from Mr. Mohammad Mudassir Shahzad. Is the employer allowed to make adjustments for the withholding taxes from an employee in previous tax year on production of tax certificates? If yes, what will be the WHT adjustments allowed for how many tax years? देखिए जी, लॉ के मुताबिक तो जिस साल का टैक्स है उसी में ही उसकी एडजस्टमेंट मिलेगी, और वैसे भी अभी FBR की साइड पे जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो उस टैक्स ईयर को ही क्लेम वो आपको देगा, पिछले साल का क्लेम उसमें नहीं आता, अनलेस के वो ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड में ना आ रहा हो। और अगर आपने पिछले साल का क्लेम लेना है तो उसमें लॉ के तहत तो फिर आपको रिटर्न ही रिवाइज करनी पड़ेगी। आप उसके रिटर्न रिवाइज करें पिछले साल की, उसमें क्लेम लें, और वही फिर अगर ज्यादा पेबल से तो वो कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा। थैंक यू जी। Thank you very much, sir. Thank you, Malik साहब. Thank you, Adil साहब. नहीं, एनी अदर क्वेश्चन है वो मैं उसका कह रहा हूँ, मैं थैंक यू नहीं उस वजह से नहीं कहा। नहीं sir. We have with this we will be concluding this webinar, and we thank you and also Adil saab for sparing your time. For the concluding remarks and formal vote of thanks, I would like to request the man behind all these CPT activities of the institute, Mr. Athar Salim Chaudhary, who is the chairman of CPT committee, to kindly share his thoughts. चलिए, अतर साहब से पहले मैं एक बात बस करना चाहूँगा कि इसमें जो अतर साहब का और नेशनल काउंसिल IBC ने जॉइंटली ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, और उसमें सेक्रेटेरिएट का भी रोल।
उसमें मैं ये कहूँगा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से अगर कोई सजेशंस हों तो वो ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उसका अभी अतर साहब एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो हमारे नेक्स्ट सेशन भी हम चलाना चाह रहे हैं विद द सजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट। थैंक यू। थैंक यू मलिक साहब। एंड जो पर्पस था आज के सेमिनार का, सॉरी, वो ये था कि टैक्स अमेंडमेंट्स जो हैं वो बहुत रैपिडली आती हैं। जब बजट आता है तो हम उस वक्त उनको समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट्स होती हैं जो आप रेगुलर प्रैक्टिकली उनको यूज़ नहीं करते। जब आप उन्हें यूज़ नहीं करते तो ओवर द पीरियड वो हमारे जहनों से निकल जाती हैं, और जब आपको कोई बिजनेस डिसीजन करने पड़ते हैं तो उनका याद ना होने की वजह से कई दफ़ा हम अपने एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कंसल्टेंट्स के ऊपर। तो इस वजह से मैंने मलिक साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जी जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं टैक्स लॉज की पिछले सालों में, उसके ऊपर एक हमें रिवीजन करवा दीजिए, रिफ्रेशर हो जाए सारे मेंबर्स का, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम भी है तो उसमें बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो थैंक यू टू हिम। और ये हमने जो प्लान किया था दैट वाज एंड ऑफ मार्च। तो मीनवाइल ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन का जो था हमारा ऑर्डिनेंस वो भी आ गया। उस पर फिर हमने आदिल साहब से रिक्वेस्ट की कि जी आप अगर जो है इस पर तैयार कर लें। तो आदिल साहब ने रिक्वेस्ट कर ली, हम एग्री कर लिया हमसे, और इन दोनों ने अपने ऑब्वियसली क्योंकि बिजनेस भी रन कर रहे हैं, घर से भी रन कर रहे हैं, उसमें इन्होंने दोनों ने टाइम निकाला अपनी प्रैक्टिस में से, इनका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मलिक साहब ने कहा है कि आपके पास कोई और सजेशंस हो, किसी और टॉपिक्स के ऊपर हो, तो आप ज़रूर शेयर करें। इससे पहले जो है, अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने अटेंड किया, लाहौर से यासीन साहब ने करवाया था, तो वो उसके अंदर हमने कॉर्पोरेट लॉज को कवर कर लिया था। तो अब हमारे जो कॉर्पोरेट लॉज हैं और जो टैक्सेशन लॉज हैं, इन दोनों को हम रिवाइज कर चुके हैं। तो इसके अलावा अगर किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो प्रैक्टिकल, तो उसके ऊपर भी हम सेमिनार करवा सकते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे जो अभी अपकमिंग है, मैं आसिम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। आसिम साहब मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गए। अभी 2-3 हमारे इन लाइन है वेबिनार्स, और थोड़ा सा क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो उसके हिसाब से हमने अभी फर्दर आपको कम्युनिकेट नहीं किया। थोड़ा सा रमज़ान के टाइमिंग कंफर्म हो जाए किस तरह होंगे, तो उसके बाद हम आपको उसकी भी जो कम्युनिकेशन है वो भिजवा देंगे। 2 तो हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक दफ़ा चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं तो फिर हम उनको टॉपिक्स वाइज अनाउंस कर देंगे। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। आमिर साहब, अगर आप कोई इसमें क्लोजर की तरफ जाएं, या आसिम साहब वापस आ गए हैं, तो आसिम साहब अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहें तो यू आर वेलकम। एंड थैंक यू। मलिक साहब ने कर दिया था, लेकिन मेरा भी थैंक यू बनता है कि एज सीपीटी हेड मुझे पता है कि घर में बैठ के जो सीपीटी टीम है वो भी काम कर रही है, सारे सबको इंगेज कर रही है, और ये जो प्लेटफॉर्म है इसको भी उनको अप रखा हुआ है। तो थैंक यू सीपीटी टीम एंड सेक्रेटेरिएट। Thank you very much, sir. Thank you, everyone. Thank you to all the participants. In the end, I would just like to say Asim that. Saab, over to you, please. Ji sir, can you hear me? Hello. Hello. Ji, I can hear you. In the end, sir, just I wanted to say to all the participants to stay safe, stay connected to the institute, wait for the announcements for upcoming webinars, because there are plenty more to come. Thank you very much, and Allah Hafiz. Good night for now. Thank you very much. इधर 2-2 चार मारे